Okay, dear student, we are conducting the snap of our student Abhishek, and this snap for the DSU lecturer and subject is digital electronics. Okay, Abhishek, in the digital electronics, very basic question. What is the difference between XOR gate and XNOR gate when we have the three input? Sir, when we have the three inputs. Yes. Actually, sir, XOR and XNOR gate both are the special kind of gates which are used for mathematical calculations. When we have three input, the XOR gate gives output X B bar C plus. Suppose we have three inputs A, B, C. So the output possible outcome of the XOR gate should be A, B, C bar and A bar B, C. And for XNOR, there would be a negation. Means the only two term in the output of the XOR. दो ही term होंगे output पर. Yes, sir. अच्छा, minterm बता सकते हैं? How many minterm will be there at the output? Sir, can I use the whiteboard? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप लेक्चर के लिए जा रहे हैं तो वो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल. Yes, sir. Suppose sir, this is my I think it is. There is the whiteboard option available. क्या हो रहा है? Whiteboard option सर एक्सेस नहीं हो रहा है इसके अंदर. अच्छा, चलो कोई नहीं, आप ऐसे ही समझा दें. डू यू हैव पेपर एंड पेन? Yes, sir. उस पे बता दें, इसको हटा दें. Sir, actually, I have studied for the two input this gate. हाँ, इसीलिए तो इसका थ्री इनपुट का पूछा है. टू इनपुट तो सभी पढ़ते हैं, है ना? Sir, for three input, we have to calculate. Actually, we have to make the K map and then solve for. If we are able to solve for the XOR gate, then simply we pass that output to not yet and. You don't study any special thing about the three input. Three input के लिए आपने कुछ भी खास नहीं पढ़ा हुआ है ना? Sir, right now I'm not striking with that one. No problem, no problem. Yes. What is the use of the A to D and D to A converter? Why we study the converter? Sir, the purpose of a converter is basically to change the type of signal from one form to another. Suppose if I am using A to D converter, then it is used for converting analog signal to the digital signal for some specific application. And if I am using D to A converter, then it is basically used for converting digital signal to the analog signal in the for particular application. Okay. Can you explain any topic? आपने जो कोई टॉपिक ऐसा पढ़ रखा है जो कि आप एक्सप्लेन करोगे, है ना? जैसे आपको वहां पे बोर्ड पे पहुंचा सकते हैं. सर, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. चले एक्सप्लेन करें. आपके पास 2 से 3 मिनट है, आप एक्सप्लेन करें कैसे करेंगे, है ना? पेन पेपर नहीं है तो थ्योरेटिकली बोल दें, समझाएं. Sir, okay, sir. In digital electronics, we have two kinds of circuit. First is combinational circuit, second is sequential circuit. Combinational circuits are basically those circuits which don't have memory elements. Sequential circuit, however, consists of memory. Combinational circuits are basically those circuit which depends on the present inputs and not on the past input, because they don't have memory elements in them. Some commonly used combinational circuits are multiplexers, demultiplexers, decoders, encoders, comparators. So these are the combinational circuits.
The basic elements of the combinational circuits are the logic gates. And by using NAND or NOR gate, we can implement any kind of combinational circuit. Okay. और कुछ combinational में? Sir, in combinational circuit, the most commonly used circuit is multiplexer. The multiplexer is used for selecting any one of the input out of the available any one input on the based of select lines. We select one of the input and connect to the output line. So multiplexer is in short we can say many to one, and demultiplexer is performs the reverse operation of multiplexer, one to many. And then we have encoder. Okay. Okay. And any other practical use of the multiplexer? Multiplexer कोई practical use है? Yes, sir. Sir, in communication we use the for suppose if I am using a particular kind of protocol, suppose in modulation in which there are many signals. So by using multiplexer, basically we can filter out the particular signal out of the multiple signals. किस टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग है? FDM की TDM कहाँ पर यूज होता है? कि दोनों में होता है? Sir, FDM. We can use it in both of them. Depend on our application. अच्छा. Hazard सुना है? अपने when we study the logic gate. Yes, sir. Yes, sir. The word is hazard. What is the meaning of hazard? Sir, hazard is basically something hazardous, something dangerous. If suppose I am forming any digital circuit, and during the formation or after the formation, my circuit is not as per the standards, or they are not performing as per the standard, then they come under the hazard, or it has some harmful effect. If then we can also say that. अभिषेक मैं आपको इधर बीच में रोकना चाहूंगा, है ना? लास्ट में आपका फीडबैक दे, तब पर मैं आपको अभी बता देता हूँ. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरव्यू में, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू नो द आंसर, है ना, तो आप उसको अटेम्प्ट करें. अगर आपको आंसर नहीं पता है तो अपन को ट्राई नहीं करना, और ट्राई करना भी है तो उनसे पूछ के करना है कि सर आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, कैन आई ट्राई? आपको हजार के बारे में पता था क्या? सर पढ़ा तो है मैंने, बट अभी स्ट्राइक नहीं करना है. बिल्कुल. तो आपने बिल्कुल जस्ट जैसा होता है ना कि आपने उसके नाम से हजार मतलब हजार्डियस होता है सब. सर एक्चुअली पढ़े हैं मैंने, स्टैटिक हजार्ड, डायनामिक हजार्ड. हाँ होता है, बिल्कुल सही है, पर उसका कहीं से कहीं आपने जो आंसर दे रहा ना उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? जिस तरह से है तो वो जरूरी चीज है कि किस तरह से अपन को आंसर देना है, ठीक है? तो उसका ध्यान रखना है हमेशा अपन, ठीक है? यस सर, यस सर. इट इज इम्पोर्टेंट थिंग. अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वी हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, चलें, नो प्रॉब्लम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द काउंटर? व्हाट दे डू एक्चुअली? Sir, counter is basically a sequential circuit in digital electronics. So the purpose of the counter is to count a sequence to a particular number. Suppose if I am forming a 9-bit counter or a 8-bit counter, then it will count from 0 to 7, that is 8 times. And when the value reaches to the 7, suppose then it will move to the initial value. So counter is basically a sequential circuit, and the purpose of the counter is to count some sequence of values starting from the 0 to a particular value. It depends on basically my mode number, what kind of counter I am forming, mode 3 counter, mode 4 counter, or mode 5 counter. And अच्छा, what is the meaning of the mode? Mode का मतलब क्या होता है? क्या मानूं मैं mode से? Basically, sir, the meaning of mode represents the number of flip-flops. Suppose if I am
using mode 3 counter. Then for designing that mode 3 counter, I require 3 flip-flop. मॉड 3 में कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे? सर मॉड 3 में 8 होंगे सर फ्लिप फ्लॉप। 8 फ्लिप फ्लॉप होंगे, कंफर्म है? 2n होते हैं सर आई थिंक ना। तो मॉड 3 मॉड 4 3 2 raised to power n क्या होता है? व्हाट इज द 2 raised to power n? फ्लिप फ्लॉप होते हैं 2 raised to power n। यस सर। ओके। अगर हम बात करें सिंक्रोनस काउंटर की, ठीक है, तो सिंक्रोनस काउंटर में मुझे एक सीक्वेंस डिटेक्ट करना है। पहले तो आप बताएं ये सीक्वेंस जो मैं बोल रहा हूं, सुने इसको, 0 0 0 0 1 1। आपके पास पेन पेपर है तो आप लिख भी सकते हैं। यस सर, यस सर। हाँ, 0 0 0 0 0 0 1 0 0। देन नेक्स्ट स्टेट बोल रहा हूं मैं, 0 0 0 1 0 0। देन 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। नहीं, 0 1 1 केवल 0 1 1। ओके ओके, 0 1 1 एंड 1 1 1 1 एंड अगेन बैक टू 0 0 0। ओके, ये आपके सामने एक स्टेट डायग्राम बोला है मैंने, है ना? हाँ जी सर। तो क्वेश्चन है कि ये स्टेट डायग्राम कौन से काउंटर के लिए है? सिंक्रोनस से डिजाइन करूं मैं इसको, असिंक्रोनस से डिजाइन करूं कि दोनों से डिजाइन कर सकता हूं? सर दोनों से डिजाइन कर सकते हैं। द डिफरेंस इज दैट बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस दैट we can apply a simultaneous clock in synchronous counter to all the flip-flop. But in asynchronous counter, the clock is applied to the very first flip-flop, and the output of that flip-flop will drive the next flip-flop. Okay, Abhishek, your time has been completed. Okay. तो पहले मैं आपका फीडबैक दूं, पहले आप फीडबैक दें अपना कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। सर एक्चुअली अभी मैंने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया था, मुझे ना थोड़ा सा स्लॉट का इशू था, तो इसलिए मैंने नाइट का स्लॉट लिया था अभी। तो थोड़ा सा अप टू द मार्क तो नहीं रहा है, बट अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन करूं तो बेटर हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है परफॉर्मेंस। देखो, पहली फर्स्ट ऑफ थिंग, जैसे आपने लास्ट में काउंटर बोला है ना, काउंटर का आंसर गलत है, क्योंकि ये एक आप जो टेबल देखो ना, एक प्रॉपर अप और डाउन टेबल मिक्स किया है मैंने। पहले 0 के बाद मैंने 4 बोल दिया, 4 के बाद 3 बोल दिया, फिर 7 बोल दिया, आप देख रहे हो, है ना? तो इस तरह का जो टेबल है, स्टेट डायग्राम है, ये केवल सिंक्रोनस काउंटर में अचीव कर सकते हैं, असिंक्रोनस में अचीव नहीं कर सकते। ठीक है सर। पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने क्वेश्चन शुरुआत में ही पूछा था एक्सओर गेट, एक्सनोर गेट का, हाँ, तो लेक्चरर के लिए आप जा रहे हो, आपका लेक्चरर के लिए है ना? यस सर, यस सर। ना, तो वो एक्चुअली सर मैं सेम डिपार्टमेंट में वर्क भी कर रहा हूँ ऑन एड हॉक बेसिस। कौन से डिपार्टमेंट में? इसी में, डीएसयू में। डीएससीओ में, ओके। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो अब आपसे, क्योंकि लेक्चरर के लिए मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा कभी कभी वो अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? बहुत टू इनपुट तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, वो है। तो आपका प्रेफरेंस रहेगा, मुझे जहां तक है। कितनी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? सर इसमें 22 पोस्ट हैं ईसीई के लिए। 22 है। तो क्या केवल ये आपके डिपार्टमेंटल लेवल पे है कि ओपन टू ऑल है? नहीं सर, ये ओपन लेवल पे ही है, बट इसमें रिटन टेस्ट कंडक्ट हुआ था, तो
we are exempted from written test being an internal candidate, but interview base पे selection होगा. ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यू के लिए कितने अपीयर हो रहे हैं? सर इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 के अप्रोक्स स्टूडेंट की लिस्ट है. ओके, तो ठीक है, मतलब 5:1 का रेशो है. ठीक है, अभी से अब चांस है इसमें, है ना. पहले बात तो आपका कि आप इंटरनल कैंडिडेट हो तो आपका चांस है. थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा. डेट ऑफ इंटरव्यू कब है? सर अभी आए तो नहीं है, बट एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन नेक्स्ट मंथ. 10th जनवरी के आसपास हो सकता है इंटरव्यू. ठीक है, तो अपने पास सफिशिएंट टाइम भी है ना. तो आप पहले तो इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ना स्टार्ट करें, है ना. क्योंकि 50%, 50 ऑलमोस्ट 40% आंसर मुझे ठीक नहीं लगे, अप टू द मार्क नहीं लगे, है ना. Okay, और sir. इम्पोर्टेंट थिंग कि क्वेश्चन का आंसर देते समय ये क्या होता है, क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कि आपका नाम क्या है, तो आपने बोला मेरा नाम अभिषेक गौर है. ये क्या हुआ, क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर हुआ. अब आप बोलो कि मेरे पापा जी का नाम ये है, मेरी माता जी का नाम ये है और ये मेरा जी. नाम अभिषेक है, तो ये क्या हुआ, आप समझ रहे हो ना. आपने एग्जैक्ट आंसर दिया पर उसको थोड़ा सा घुमा के दिया, तो आप समझ रहे होगे कि आंसर दोनों सुनने में आपको कौन सा अच्छा लगेगा. एज ए इंटरव्यूअर यू वांट एग्जैक्ट आंसर, ठीक है. उस पर भी हमको Yes. ध्यान देना है. ठीक है, जो पूछा गया है कोशिश करें. ये ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आपको हमेशा एग्जैक्ट पता हो, पर कोशिश करना है. मॉक इंटरव्यू का मतलब क्या था, मॉक इंटरव्यू का मतलब होता है कि जो हमें कमियां हैं उनको हमको रिमूव करके एक्चुअल इंटरव्यू में जाना है. ठीक ठीक है सर. है ना. ये दो हो गया. पहला हमने क्या बोला कि पढ़ना है. दूसरा, इस पे अप टू द पॉइंट जो है ना उस पे आंसर देना है. ठीक है. तीसरा, अगर आप अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा, ठीक है, तो आप आंसर जैसे भी लैंग्वेज में देना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मुझे लगता है ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कभी Yes, कभार sir. डिपेंड्स टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड नेक्स्ट थिंग, थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन पे भी काम करना है. बिल्कुल एकदम आपके थोड़ा सा सिंसियरिटी वाले हैं, तो थोड़ा सा कभी कभार उसको भी एक्चुअल में थोड़ा पॉजिटिवनेस आती है. ये सब चीजें आती है बाद में, फाइनल टचअप, है ना. ऐसा नहीं है कि फेशियल एक्सप्रेशन से ही होता है, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑल द थिंग्स. ओके, ठीक है. ठीक है ओके, आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे अभी से? सर. एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे काफी टाइम से मैं हूँ इसमें बीइंग ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, और मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर और ईडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा लिए हैं. तो क्या वो इंटरव्यूअर जो होंगे वो हमें सब्जेक्ट चॉइस देंगे, या रैंडमली वो पूरे ईसी में से कहीं से भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं? इट डिपेंड्स. जैसे मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल बताऊं, अभी आपको पता होगा लास्ट टू लास्ट मंथ, मतलब 3 मंथ एगो, अभी इंटरव्यू हो रहे थे यूपीपीएससी के पॉलिटेक्निक लेक्चरर की. ठीक है. Yes. तो कुछ बच्चों को उन्होंने ऑप्शन दिए कि आप क्या पढ़ के आए हैं. किसी से जो पूछा, सपोज आपने बोला मैं डिजिटल और ईडीसी एनालॉग पढ़ के आया हूं, तो उन्होंने उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछे. ठीक है. तो ये मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ. अभी लास्ट मंथ हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना, हरियाणा का भी हुआ है. तो ये सब मिक्स होते हैं. तो क्या समझ में आया, मैं इससे इससे समझ में आया कि बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि आप जो पढ़ के जाओ वही पूछे, या ये किस्मत होती है. इसको अपन बोलते हैं ना इंटरव्यू में किस्मत की बात है. 10-15 मिनट में क्या आपका लक चल जाए. अगर आपने सपोज आपने डिजिटल बहुत अच्छा पढ़ा और नेक्स्ट 15 मिनट या 20 मिनट जितना इंटरव्यू चलने वाला उन्होंने डिजिटल से ही पूछ लिया, तो इट इज योर लक, है ना. और सपोज आपने ईएमएफटी नहीं पढ़ा और सामने जो इंटरव्यूअर बैठा है वो ईएमएफटी उसको अच्छा आता है, मैं बैठा हूँ सपोज, है ना, मुझे कंट्रोल अच्छा आता है. अब मैं तो कंट्रोल ही पूछूंगा, कोई सिलेबस तो होता नहीं इंटरव्यू का. ठीक है ना. बिल्कुल. उन्होंने तो बस एक आइडिया ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है ये है. तो अब आपको कंट्रोल नहीं आता तो ये आपका बैड लक है. तो मेरा इंटरव्यूअर जो भी देने जा रहा है उनको एक ही सजेशन रहता है मेरा कि आप एक काम करें, आप सभी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें. ठीक है, बेसिक Okay. लेवल पर. जैसे समय नहीं है, मान लो आपके 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो आप 4 पहले अच्छे प्रिपेयर कर लें. ठीक है. ये मतलब कि 60% ऐसा चांस होता है कि वो आपके बताए हुए सब्जेक्ट में से पूछते हैं, बट 40% ये चांस भी, 30% ऐसा होता है कि वो आपके बताए हुए सब्जेक्ट से नहीं पूछते, और 10% उल्टा ही होता है, कुछ पता ही नहीं है क्या हो जाए, है ना. तो ठीक है, तो अपन ने क्या डिस्कस किया कि फाइनली आप जो सब सब्जेक्ट को पढ़ के जाएं बेसिक. सपोज आप कंट्रोल पढ़ के नहीं जा रहे हैं, बट बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट आपको कंट्रोल का ये तो पता होना चाहिए कि ओपन लूप क्लोज लूप का डिफरेंस क्या है ना. Yes, sir. अगर बेसिक चीज नहीं बता पाए तो वो नेगेटिव जाएगा. अब मैं आपसे कंट्रोल सिस्टम में
डिजाइनिंग पुल्लू की जीटा क्या वैल्यू पे डिजाइन करते हैं, तो आप ये नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं है, एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, हो सकता है भूल गए हो। पर बेसिक अगर नहीं बता रहे हो, जैसे मैंने आप नेटवर्क पर नहीं जा रहा हूँ, मैं हमने आपसे किरचॉफ लॉ पूछ लिया, आप किरचॉफ लॉ नहीं बता पाए तो नेगेटिव है आपका, है ना। यस सर। ओके अभिषेक, तो ये आपका आंसर हो गया। और कोई क्वेश्चन? बस सर एक बार एक्चुअली मैं थोड़ा प्रिपरेशन करके और देना चाहता था बिल्कुल डिजिटल, बिल्कुल। तो हाँ 3-4 आप, दिन बाद। हाँ हाँ हाँ, मेरा 9:30 से स्लॉट रहता है। कभी कभी आप मेरे को पर्सनल मैसेज डाल दिया करें, आपके पास होगा मेरा व्हाट यू हैव व्हाट्सएप नंबर, है ना। यस सर।